پاکستان اور دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو رانا عزیر کا سلام۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں انسرٹینٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ اس وقت تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز کنفیوز نظر آ رہے ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں، اور سب کی نظریں پاکستان کے اعلیٰ عدالتی نظام کی جانب بڑھ چکی ہیں، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب جو ہے وہ نظریں بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ وہ شاید کچھ نہ کچھ کر دیں۔ اس سارے ماحول کے اندر تو کچھ بڑی خبریں لے کر جناب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک جو فیصلہ آج سامنے آیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نہیں رہنے دینا، ان کے خلاف ایک واردات ڈال دی گئی ہے۔ لیکن آج جو خبر سامنے آئی ہے وہ خبر بہت امپورٹنٹ ہے، میڈیا کی زینت نہیں بنی ہوئی۔ کیا سارا معاملہ ہے کہ پاک فوج کی تعیناتی کی خبر اچانک سے آج گردش کرنا شروع ہو گئی ہے کہ پاک فوج کو میدان میں اتارنے کے لیے ان سے مدد مانگ لی گئی ہے۔ یہ مدد کیوں مانگی گئی ہے، کیا وجہ ہے کہ اس وقت حالات کس جانب جائیں گے؟ اور پھر دوسری جانب جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ خود میدان میں اتر چکے ہیں، ان سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور دوسری جانب جو سپریم کورٹ سے آج ایک تاریخی فیصلہ سامنے آ چکا ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان سے بڑے اس وقت ہم پر امید تھے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، تو آج انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے، جو سپریم کورٹ سے ایٹم بم چلا ہے کہ صدر عارف علوی سمیت طاقتور شخصیات ان کو سزا ہوگی، ان کے خلاف آج ایک بڑا اضافی نوٹ جاری ہوا ہے۔ اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور تاکہ آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، اسد کیسر صاحب جو ہیں ان کو عدالت نے آج رہا کرنے کا حکم دیا تھا، اور سوابی کی عدالت تھی، سوابی میں ان کو رکھا گیا تھا، تو سوابی جیل سے جیسے ہی باہر نکلے ہیں ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسد کیسر کو جیل کے اندر سے ہی چارسدہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس اسد کیسر کو سخت سیکیورٹی میں لے کر چارسدہ روانہ ہو گئی ہے۔ آج سوابی جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی، اور آج صبح سوابی کی عدالت نے گرفتار سابق اسپیکر قومی اسمبلی کی ضمانت منظور کرتے ہوئے اسد کیسر کو رہا کرنے کا حکم دے دیا تھا، لیکن اب وہ دوسرے کیس میں جناب گرفتار ہو چکے ہیں۔ اور پھر دوسری جانب جو نیازی صاحب تھے، امجد نیازی صاحب، انہوں نے سرگودا کی عدالت میں خود کو سرنڈر کر دیا تھا عدالت کے سامنے کہ وہ 9 مئی کے واقعات کے بعد روپوش تھے، وہ مطلوب تھے پولیس کو، اور اس کے بعد ابھی تک ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے وہ کہاں پر جا رہے ہیں، کہاں پر ہیں، یا ان کو عدالت کے اندر ابھی تک پروڈیوس نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ ساری خبریں تو ایک جانب ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے جب تک یہ آپریشن کلین اپ ختم نہیں ہو جائے گا، جب تک 9 مئی کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا، یہ مشکل وقت تب تک ان کے اوپر رہے گا۔ عمران خان پر بھی یہ مشکل وقت رہے گا، کیونکہ یہ 27 سال کے دور میں پہلی مرتبہ اتنا مشکل وقت ان کو دیکھنے کو مل رہا ہے، اور بہت سارے مس ایڈونچرز جو ہیں وہ ان کی جانب سے بھی کیے گئے، دوسری جانب سے بھی کیے گئے۔ لیکن جناب اس حد کے اندر اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، اہمیت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے۔ آج جناب نواز شریف صاحب نے مری میں کارکنوں سے بھی اہم ترین خطاب کیا، اور اس خطاب میں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ میں جناب 90 میں آیا تب مجھے نکال دیا گیا، 97 میں مجھے نکال دیا گیا، 2017 میں مجھے نکال دیا گیا، مجھے چلنے نہیں دیا گیا، میری حکومت نہیں چلنے دی گئی، اس سے پاکستان جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے اور پاکستان میں انسرٹینٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج نواز شریف صاحب نے کارکنوں سے وہاں پر خطاب کیا ہے، ان کو وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ مری سے الیکشن لڑیں، لیکن ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کیونکہ الیکشنز قریب ہیں۔ ابھی تک کوئی بھی پارٹی آپ کو الیکشن کیمپین کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایک جلسہ کیا، اور جو لاہور میں جلسہ تھا نواز شریف کی واپسی کے اوپر، ابھی تک کوئی جلسہ نواز شریف کی جانب سے، کوئی پاور شو ان کی جانب سے نہیں کیا گیا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ حالات کہاں پر جا چکے ہیں کہ ایک بہت بڑا لیڈر جو ایک پارٹی کا قائد ہے، جو 3 بار اس ملک پر حکومت کر چکا ہے، کہ اس کو اس وقت جلسہ کرنے کے لیے عوام نہیں مل رہی، ایک سوالیہ نشان ہے۔ پیپلز پارٹی بھی اس طرح سے الیکشن کیمپین کرتی نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان تحریک انصاف تو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے کہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی، کیونکہ 9 مئی جیسے سنگین ترین الزامات ان پر اس وقت لگے ہوئے ہیں کہ وہ اسٹیٹ سے کھلواڑ کیا گیا، اسٹیٹ کے آمنے سامنے لا کر عمران خان نے قوم کو کھڑا کر دیا۔ تو یہ بہت سارے الزامات ان پر لگے، بغاوت کا مقدمہ، 302 کی دفعات، سزائے موت، عمر قید کی دفعہ، سائفر کیس، القادر ٹرسٹ کیس، بے تحاشا 200 کیسز عمران خان جو ہے اس کے اوپر لگا دیے گئے ہیں۔ لیکن جو اس سب کے اندر اب تک کی جو بڑی خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں،
वो जनाब सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की जो समाअत थी वो हुई और इलेक्शन 90 दिनों में करवाने का जो सारा मामला था, तो उस पर अब 8 फरवरी की तारीख सामने आ चुकी है और चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने ये बात की थी कि अगर मैं जिंदा रहा तो 1 घंटा भी इलेक्शन ऊपर नीचे नहीं होगा। 90 जो मैंने तारीख दे डाली है, अब उस तारीख पर इलेक्शन होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि 90 दिनों में जो इलेक्शन नहीं हुए उसका हमने क्या करना है। जो फरवरी की जो पहले तारीख सामने आई उसमें इलेक्शन नहीं हुआ। 6-7 महीनों से सूबे के अंदर 2 सूबों में केपीके और पंजाब में हुकूमत चल रही है, लेकिन गैर कानूनी तौर पर हुकूमत चलाई जा रही है। वफाक में इलेक्शंस को डिले कर दिया गया। तो यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी बनती है? कौन था जिसकी वजह से इलेक्शन जो है वो डिले हुए? कौन इसका जिम्मेदार है? सदर आरिफ अलवी साहब के ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती थी। तो आज जनाब सुप्रीम कोर्ट से एटम बम चल चुका है और ये बहुत बड़ा एटम बम चला है। आप इस पर गौर कर रहे हैं, मैं पूरा फैसला आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा और सदर आरिफ अलवी और दीगर शख्सियात, ताकतवर शख्सियात को सजा होगी। यह क्या सारा मामला है? निगरान हुकूमतों को फारिग करने का ऐलान हुआ है। जनाब आम इंतखाबात केस में जस्टिस अतर मनीला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, उनका आज इजाफी नोट जारी हुआ है और उन्होंने इस नोट में क्या लिखा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये 41 सफ़हात का इजाफी नोट है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हकूक के मुनाफी है। आइन और कानून के बरखिलाफ निगरान हुकूमतों के जरिए अमूर चलाए जा रहे हैं, यानी कि आइन तोड़ा गया है जो निगरान हुकूमतें लगाई गई हैं। और इजाफी नोट में सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना है कि मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात आइनी तकाजा है। इंतखाबात ना करवाकर अवाम के हकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी है। अब सवाल ये बनता है कि इसमें जिम्मेदार कौन कौन है, किसने आइन तोड़ा है, कौन आइन शिकन है? 12,56,26,390 रजिस्टर्ड वोटर्स को उनके हक के राय दही से महरूम रखा गया। इंतखाबात में ताखीर को रोकने के लिए मुस्तकबिल में ठोस इक़दाम करने की जरूरत है। जस्टिस अतर मनीला ने कहा कि इंतखाबात की तारीख देने में सदर ना ही इलेक्शन कमीशन ने ही अपनी जिम्मेदारी निभाई, यानी कि दोनों ने ही जनाब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। कौमी असम्बली के तहलील के बाद 7 नवंबर तक इंतखाबात करवाना आईनी तकाजा था। निगरान हुकूमत आइन में दी गई मुद्दत के लिए होती है और अवाम को अपने मुंतखब करने के हक से महरूम रखा जा सकता है। 90 रोज में इलेक्शन ना करवाना आइन के खिलाफ संगीन तरीन वर्जी है और अब ये वर्जी हो चुकी है, खुल्लम खुल्ला हुई है और अब इसको मजीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। यहाँ तक इतनी बेबसी का इजहार जो है वो किया गया। और इजाफी नोट में दर्ज है कि इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48(5) के तहत सदर मुमलिकत का ही इख्तियार है और ये यकीनी बनाना सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान की अवाम अपने वोट के हक से 90 दिन से ज्यादा महरूम ना रह सके। इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आइन के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया है, यानी कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने भी आइन के खिलाफ वर्जी की है, सदर मुमलिकत ने भी आइन के खिलाफ वर्जी की है। ये आज इजाफी नोट में लिखा गया। और अगर सदर मुमलिकत या गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने की आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन को अपना कदार अदा करना था और इलेक्शन कमीशन को आइन बचाने के लिए अपना कदार अदा करना चाहिए था। सदर मुमलिकत और गवर्नर्स को अपने मनसब के तहत न्यूट्रल रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर्स के एक्शन ना लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। बताते चलें कि जनाब ये जो 90 दिनों में इंतखाबात का केस था उस पर चीफ जस्टिस अतर मनीला ने 41 सफ़हात का इजाफी नोट जारी किया है जिसमें उन्होंने ये सारी निगरान हुकूमतें, सदर पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन, उनको उखाड़ के रख दिया है कि जनाब आप गैर आईनी तौर पर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आपने आइन तोड़ा है। आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी होती है, यानी कि अगर इस पर अमल दरामद हो जाए तो ये सारे के सारे लोग आर्टिकल 6 के मुर्तकिब ठहरते हैं जो गैर कानूनी तौर पर या गैर आईनी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। ये एक अहम नुक्ता उनकी जानिब से जनाब उठाया गया है। एक एटम बम चला है, चलें एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बात हुई, बुनियादी हकूक की बात हुई, इंसानी हकूक की बात हुई, पाकिस्तान की आवाम की बात हुई। पहली बार जो है वो हमें चीफ जस्टिस जो के आने के बाद हमें ये देखने को मिला है। लेकिन जनाब पाक फौज की अचानक से जो तैनाती की खबर सामने है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ। वो खबर जनाब नुसरत जावेद सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि चंद जो संजीदा शख्सियात हैं उन्होंने उनसे ये कहा है, यानी कि नुसरत जावेद से कहा है कि हमें इशारे मिल रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायद साहब जो हैं वो इस असर को ज़ायल करना चाहते हैं कि वो इमरान खान से ज़ाती मुखालफत रखते हैं। यानी कि जो खबरें हैं कि चीफ जस्टिस इमरान खान से नफरत करते हैं क्योंकि उनके दौर में उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ, उनकी बीवी के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ, तो वो उस असर को ज़ायल करना चाहते हैं। तो ये अच्छी एक स्टेप है जो चीफ जस्टिस की जानिब से लिया जा रहा है कि जनाब वो ऐसा नहीं करना चाहते तो ये इंतखाबात की तारीख, फिर साइफर का मामला उनके पास है, फिर उसके ऊपर बेंच दाना, तो उनके पास सुनहरी मौका है कि पाकिस्तान की आवाम जो है उसके सामने वो अपना मुकदमा रख सकें, जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा है उसका जो है वो इलाज कर सकें। जनाब सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि पाक फौज की तैनाती की खबर आई है और ये खबर कहां से सामने आ रही है और खबर ब्रेक करने वाला कौन है, क्या सारा मामला हुआ है और आखिरकार पाक फौज की दोबारा से मदद क्यों मांगी जा रही है। इस वक्त 8 फरवरी को
इलेक्शंस की तारीख का मामला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जनाब इस ब्यूरोक्रेट्स उनको इलेक्शन में उतारना चाहते हैं, यानी कि आरओस टीआरओस उनको बनाना चाहते हैं, उसके लिए काम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी का मामला है कि इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर सवालिया निशान है। तो उस सब के अंदर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा उनकी ज़ेर सदारत एक अहम तरीन इजलास हुआ है, और उस इजलास में आम इंतखाबात के दौरान पाक फौज की खदमात ली जाएं ताकि अवाम को हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। एक बार फिर सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की फौज की मदद मांग ली गई है इस इलेक्शंस के अंदर, ताकि सिक्योरिटी और अमन अमान का मसला ना हो, सूरत हाल ख़राब ना हो और हंगामी सूरत हाल को पाक फौज उससे फौरी तौर पर निपट सके। पाक फौज को मैदान में उतारने का जनाब फैसला हुआ है। तो ये एक आज इजलास के अंदर फैसला हुआ है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब जो आर्मी चीफ जनरल आसिम साहब हैं, उन्होंने भी खुद मैदान में उतरने का जनाब फैसला कर लिया है। ये कैसा मामला है, सबसे पहले आपको बताना ये चाहता हूं कि सलीम साफी साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। वो दावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो बाहर हैं वो भी स्क्रिप्ट के मुताबिक बाहर हैं, जो रूपोश हैं वो भी स्क्रिप्ट के मुताबिक रूपोश हैं। सुहेल भाई साहब ने दावा किया है कि जब तक पाक फौज की कमान जनरल बादशाह के हाथ में थी तब तक इमरान खान ना जेल गए और ना ही उनकी पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ। जब फौज की कमान तब्दील हुई तो तब जाकर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई हुई। जब फौज की कमान तब्दील हुई तब ही जब ही फौज के खिलाफ 9 मई जो है वो हुआ था। यह भी एक अहम नुक्ता है जो आपके लिए समझना जरूरी है कि वो किसने करवाया था। और दूसरी जानिब जनाब सलीम साफी साहब ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन में बहुत बुरा होगा और नून लीग को बहुत नवाजा जाएगा। अब जनरल आसिम साहब से भी एक बहुत बड़ा मुतालबा किया है। जनरल आसिम साहब ने उलमा मशाइख से जो गुफ्तगू की थी, उन्होंने उसमें एक बात की थी कि मेरा सबसे मेन फोकस पाकिस्तान की इकॉनमी है, जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे तो मैं $250 तक ले आऊंगा। ये उन्होंने वहां पर मीटिंग के अंदर बात की थी और इसके लिए उन्होंने कहा कि उलमा मेरा साथ दें। और निगरान वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि आर्मी चीफ से दरख्वास्त है कि महंगाई कम करने के लिए डंडा इधर मोड़ें, कि आप महंगाई कम करने के लिए डंडा चला दें। जनरल आसिम साहब से बात हुई है, ये उनसे ये कहा जा रहा है। इस्लामाबाद में हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के डंडे से डॉलर नीचे आया है और मुझे उम्मीद है कि आर्मी चीफ महंगाई के खिलाफ भी डंडा उठाएंगे। और अल्लामा ताहिर अशरफी ने मजीद कहा कि हज और ऑर्गेनाइज हजाज की तरबियत भी करें, वो इबादत की जगह है, सेहत का मुकाम नहीं है। सऊदी हुकूमत उम्रा और हज के मौके पर बेहतर इंतजाम करती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात दो भाइयों के ताल्लुकात हैं और ईमान और अकीदे के ताल्लुकात हैं। हमारे लिए रेड लाइन हमारा दीन, हमारा मजहब, वतन, हमारी फौज और सलामती के इदारे हैं। तो ये जनाब एक मुतालबा पाकिस्तान की सिपा सलार जनरल आसिम साहब से उलमा ने कर दिया है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने कर दिया है कि जनरल आसिम साहब जो है वो फिर से डंडा चलाएं और महंगाई कम करें, डंडा चलाएं, ब्रोकर्स को पकड़ें, जैसे डॉलर माफिया को पकड़ा गया वैसे ही महंगाई माफिया को पकड़ा जाए। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।